पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा का ही है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान पर कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध हैं, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी हैं। हे फाट को अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वार ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थ्य और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाट को अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वार तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा, वही प्रतापी राजा है। The earth is the Lord's and all its fullness, the world and those who dwell therein. For he has founded it upon the seas and established it upon the waters. Who may ascend into the hill of the Lord, or who may stand in his holy place? He who has clean hands and pure heart, who has not lifted up his soul to an idol, nor sworn deceitfully, he shall receive blessings from the Lord and righteousness from the God of salvation. This is Jacob, the generation of those who seek him, who seek your face. Lift up your heads, O you gates, and be lifted up, you everlasting doors, and the King of glory shall come in. Who is the King of glory? The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. Lift up your heads, O you gates, lift up your everlasting doors, and the King of glory shall come in. Who is the King of glory? The Lord of hosts, he is the King of glory. Once again I greet you in the most precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. As we all are here and watching Sunday service through media, and may God bless you abundantly throughout this whole service. अजीजों, अब ये वक्त होगा कि हम अपने सरों को झुकाएंगे और आज की संडे की इबादत शुरू करने से पहले हम लोग खुदा से दुआ मांगेंगे। Thank you, dear gracious Heavenly Father, for this wonderful time that you have given us, O Lord, that we indulge ourselves into this service. And Lord, throughout this service be with us and guide us. And also, Lord, you may glorify, Lord, through our lives. Lord, we especially pray for today's service, Lord. Lord, your abundantness and your love be upon us. And also, Lord, we commit today's service into your mighty hand. And Lord, as we start today's worship, it may acceptable unto you. And Lord, you are the Father of all glory. And Lord, you are the King of all of us. Lord, we bless you, we exalt your name on high. Thank you, Jesus, for each and everything. We ask this pray in Jesus' most precious name. Amen. अजीजों, अब ये वक्त होगा कि हम परमेश्वर की इबादत को करेंगे। हम एक गीत को गाएंगे जो कि हिंदी गीत की पुस्तक में पाया जाता है। 89 गीत नंबर, क्रूस ही के पास जहाँ खून बहा। हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना को करेंगे। क्रूस ही के पास जहाँ खून बहा। आइए हम परमेश्वर के लिए गीत को गाएं। क्रूसी के पास जहाँ खून बहा, धक्के गुनाहों से मैं गया, खून से वहाँ ये दिल साफ हुआ, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, खून से वहाँ ये दिल साफ हुआ, उसकी हो तारीफ। दूर है गुनाह मेरे बेयकीन, दिल में अब यीशु है तकनीशी, क्रूसी का
मुझको है शेरे उसकी होता रे उसकी होता रे उसकी होता रे खून से वहाँ ये दिल साफ हुआ उसकी होता रे क्रूस का वो चश्मा है बेसबहा खुशुकी में उसके पास गया खून मुझको यीशु ने साफ किया उसकी होता रे उसकी होता रे उसकी होता रे खून से वहाँ ये दिल साफ हुआ उसकी होता रे आधे के चश्मा है साशफा आता की हो तेरे गुनामा आए सिवत भी हो तू सा उसकी होता रे उसकी होता रे उसकी होता रे खून से वहाँ ये दिल साफ हुआ उसकी होता रे अब ये वक्त होगा कि हम अपने ईमानों का इकरार परमेश्वर के आगे करेंगे. We will affirm our faith before God by reading Apostle Creed, which is found in English book 738 page number and in Hindi page number 1. Let us unite in this historical confession of faith before God. मैं अधिकार रखता हूँ खुदा कादिर मुतल्लक बाप पर जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर जो रूह कुदुस से मुजस्सिम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुए 35 की पुलातुस की हुकूमत में दुख उठाया सलीब पर खींचे गए दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे आसमान पर चढ़ गए और खुदा बाप कादिर मुतल्लक के दाहिने हाथ जा बैठे हैं जहाँ से वो जिंदे और मुर्दों के इंसाफ करने को आएंगे. मैं अधिकार रखता हूँ रूह कुदूस पर पाकले से आम पर मुकद्दस रिफाकत गुनाहों की माफ़ी और जिस्म के जी उठने और अब्दी जिंदगी पर. आमीन. अब अजीजों ये वक्त होगा कि हम सब रेस्पॉन्सिव रीडिंग में भाग लेंगे. we will partake and we will read Psalms 16 as responsive reading. हम पढ़ेंगे भजन संहिता 16 एक उत्तरवादी पाठ के रूप में और पहला जो वर्ष है वो मैं पढ़ूंगा और दूसरे आप पढ़ेंगे. हे ईश्वर मेरी रक्षा कर क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ. पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ. यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है. मेरे भाग को तू स्थिर रखता है. मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है. इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई. मेरा शरीर भी चैन से रहेगा. आइए आखिरी वर्ष जो वर्ष 11 है हम सब एक साथ मिलकर पढ़ें. तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा. तेरे निकट आनंद की भरपूरी है. तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है. आइए हम सब मुसिता इस बात की एक साथ मिलकर गाएंगे. ओ सिताइश बाप की और बेटे की और रूह कुदुस की भी
जैसे इब्तिदा में हुई है अब भी और रहेगी हमेशा तक। आमीन आमीन। अजीजों, अब ये वक्त होगा कि हम पास्टोरल प्रेयर के अंदर जाएंगे। We will seek God in prayer and we will ask from God for our brothers and sisters, for our AMC, and also we will ask from God His blessings, His love, His grace, His mercy upon all of us. हम लोग सब मांगेंगे परमेश्वर से कि परमेश्वर हम सबको बहुतायत से आशीष दे और परमेश्वर हमारे अपोस्टल मेथोडिस्ट चर्च उसकी कांग्रीगेशन के साथ भी रहे और परमेश्वर बहुतायत से अपने कार्यों को पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में करे। और फिर हम प्रार्थना उन लोगों के लिए भी करेंगे जो बीमार हैं और जो अपने बर्थडेज, अपने वेडिंग एनिवर्सरीज को इस हफ्ते बनाते हैं। हम लोग परमेश्वर के सामने अपने जितने भी विनतियां हैं उसको रखेंगे। आइए हम प्रार्थना मांगे। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, हम धन्यवाद देते हैं आपके सुंदर समय के लिए जो ये समय आपने हमें भरपूरी से दिया। हम यहाँ पर मौजूद हैं खुदा और आपके इबादत को करते हैं, आपकी परस्तिश को हम करते हैं। आप हमारे साथ हैं, हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम मान लेते हैं पिता कि हम पापी हैं और हम अपने पापों के कारण हम आपके सामने, आपके प्रेजेंस में नहीं आ सकते, मगर आपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें छुटकारा दिया, हमें अपने पापों से छुड़ाया, ताकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम आपके चरणों पर आ सके, क्योंकि आपने हमको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही अपने बेटे और बेटियां होने का हक दिया। हम धन्यवाद देते हैं खुदावंद खुदा इस महान अवसर के लिए, इस महान मौके के लिए, जबकि हम आपके नाम से हम अपने जीवन को जीते हैं और आपके नाम को मुबारक कहते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता तमाम बरकतों के लिए, तमाम आशीषों के लिए जो नाम अनाम हमारे जीवन में देते हैं। खासतौर से हम प्रार्थना करते हैं हमारे चर्च अपोस्टल मेथोडिस्ट के लिए। पिता, अपोस्टल मेथोडिस्ट चर्च और इसकी जितनी भी कांग्रीगेशन है उनके लिए भी हम दुआ मांगते हैं, उनको भी हम आपके हाथों में देते हैं। पिता, एक एक परिवार को, एक एक जने को पिता आप बहुतायत से ब्लेस करें, आपका हाथ उनके ऊपर बने और पिता उनके जीवन में आपकी ब्लेसिंग्स पिता आने वाली हो सके। और आपने उनको जीवन के अंदर बहुत सी आशीषों को दिया है, इसके लिए भी हम आपके शुक्रगुजार हैं खुदा। हम प्रार्थना करते हैं खास तौर से हमारे चर्च की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो यूथ है, चाहे वो MYAF है, चाहे पास्टर कमेटी है, चाहे कोई क्यों ना हो, चाहे WCS है, सारी ऑर्गेनाइजेशंस को, सारी कमिटीज को हम आपके हाथों में देते हैं पिता। और उनके जितने भी मेंबर्स हैं उनको भी हम आपके हाथों में देते हैं। अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि से आप परिपूर्ण करें, ताकि हम अपने इच्छाओं को नहीं, अपने विल को नहीं, बल्कि आपकी दी गई बुद्धि और आपकी दी गई पिता विल से आपकी इच्छाओं को हम पूरा कर सकें। और मेथोडिस्ट जो चर्च है, अपोस्टल मेथोडिस्ट चर्च, पिता आपके नाम का बैनर पिता लहराए और लोग पिता विटनेस करें, गवाही दें कि वास्तव में परमेश्वर का कार्य अपोस्टल मेथोडिस्ट चर्च के द्वारा होता है। हम प्रार्थना करते हैं हमारे पिता पासवान के लिए, रेवरेंड डॉक्टर जॉन आर विश्वास, उनकी फैमिली के लिए। हम प्रार्थना करते हैं पिता पास्टर मन कुमार राम की फैमिली के लिए, प्रार्थना करते हैं पास्टर शाहरुख साहब उनकी फैमिली के लिए। पिता, हम अपने आप को आपके चरणों पर देते हैं, अपने आप को अपने हाथों में देते हैं। आप हमारे साथ रहते हैं, हम धन्यवाद देते हैं। हमें भी पिता आप अपनी ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण करें, ताकि हम आपकी इच्छा को पूरी कर सकें। और धन्यवाद देते हैं कि इस प्रिविलेज के लिए, जो प्रिविलेज आपने हमें दिया, ताकि आपके नाम को लेते हुए पिता हम इस चर्च को, कम्युनिटी को और पिता आपको हम सर्व कर सकें। हम अपने परिवारों को भी आपके हाथों में देते हैं।
आपकी इच्छा हमारे जीवन के द्वारा पूरी होने वाली हो सके। And Lord, we especially pray for Pastor Mankumar Rai and his wife, and we commit both of them into your mighty hand, Lord, as Lord, they found in COVID-19. And Lord, be with them and remove this virus from their life. And also, Lord, pour out your abundant healing upon them and heal them, Lord, and touch them by your everlasting arms, by your everlasting hand. And Lord, we especially pray for our conference leaders. We especially pray for our Bishop Sir and his family. We commit into your mighty hand. We commit every leaders of our conference into your mighty hand, Lord. And Lord, thank you for the such wonderful blessings that you have given to them and added in their lives. And Lord, also bless them abundantly, provide your wisdom and your knowledge, and your will be done through their activities and through their functionalities, those who are working for you. And Lord, those who are extending your kingdom on this earth under the banner of MCI. Lord, we pray for upcoming programs of our churches. Lord, we commit every program into your mighty hand, every activity into your mighty hand. Lord, your will be done through us, and your, Lord, will be done through the whole activities of Apostle Methodist Church. And Lord, also we pray and we commit those who are sick, Lord, into your mighty hand, and be with them, Lord, and also, Lord, provide your healing and touch them, Lord, and remove all sickness, all diseases, all illness from their lives. And Lord, make them your witness, so they may witness you and they will tell that our Jesus is Almighty God. Lord, thank you for healing them, and thank you for your healing that you bestowed upon them through Jesus Christ. और पिता, हम प्रार्थना करते हैं जो कि इस दौरान जो हमारे चर्च के मेंबर कोविड-19 के अंदर पाए गए, पिता, कोविड के अंदर पाए गए, हम नहीं जानते वो कौन कौन है, मगर जो हमारे पास जो सूचनाएं आई हैं, इन्फॉर्मेशन आई है, पिता, हम खास तौर से प्रार्थना करते हैं मिस्टर एंड्रू के लिए, जबकि पिता वो भी पॉजिटिव पाए गए, उनके साथ आप रहें, उनको भी आप चंगाई दें, और पिता उनको भी आप हृदय से पिता आशीष बरकत दें, उनकी फैमिली को भी आपके हाथों में रखते हैं, एंड कीप देम सेफ, लॉर्ड, फ्रॉम एवरी हार्म एंड फ्रॉम एवरी डेंजर. एंड ऑल्सो वी प्रे फॉर आवर church worker, Brother Ranraj, and his family we commit into your mighty hand, especially his son Simon into your mighty hand, Lord, and also heal him, and Lord, also provide your wisdom and knowledge to him, so he may serve you through his life, and he may exalt your name on high through his life, O Lord. And Lord, especially we pray for today's sermon, Lord, as your servant Reverend Dr. John R. Vishwas is going to share your words with us, speak through him. And Lord, also, Lord, today's sermon may bring 100-fold of fruit in our lives, and you may glorify, Lord, through our lives and through our deeds. We pray for those who are celebrating their birthdays, their wedding anniversaries during this week. Lord, be with them, and thank you for the such wonderful and dedicated life that you provided to Apostle Methodist Church. Lord, we commit them into your mighty hand, and Lord, also pour out your abundant blessings upon them and use them mightily for your kingdom and for your vineyard. And thank you, God, for each and everything. And Lord, whatever we received, Lord, from you in the form of blessings, in the form of love, mercy, and grace, we may spread, Lord, make us like this and mold our life like this in such a way where your will be done through our life, and we may spread your love to the world. And Lord, the people, those who are outside of the church, they may know about you. Lord, bless our ministry and bless our church and bless its activity as well. Thank you, God, for each and everything. We pray especially for our country, India. We pray for our leaders, political leaders, PM, President, CMs. Lord, we commit each and every town, village, state, cities into your mighty hand, Lord. Lord,
please heal every people, those who are affected by this virus, Lord. And Lord, your harmony, your peace will be done among us. Thank you, God, for hearing our prayer. Thank you for such wonderful love that you showed through Jesus Christ. Thank you for each and everything, God. We ask this pray in Jesus' most precious name as you taught us to pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And do not let us fall into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, power and the glory, forever and ever. Amen. अजीज, अब ये वक्त होगा कि हम कुछ गीतों के माध्यम से परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे और प्रेज एंड वर्शिप के द्वारा हम परमेश्वर को ग्लोरी देंगे. वी विल ग्लोरीफाई गॉड थ्रू प्रेज एंड वर्शिप. एंड मैं रिक्वेस्ट आवर चर्च क्वायर टू लीड अस इन प्रेज एंड वर्शिप. हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो. आनंद से यहोवा की आराधना करो. जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ. निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है. उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं. Let's
how you bless our lives, Lord God, how you fill our lives, Lord God. I simply want to say, I love you, Lord. I simply want to say, I love you. I simply want to say, I adore you, and I want to live your name even higher. प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे, और उठाऊं ऊंचा तेरा नाम सदा। Loving Heavenly Father, we just want to thank you and praise you for this beautiful time that you've given us. We thank you, Lord, that even though we could not come together as a church to worship in the sanctuary, we believe, oh Father, that we are the temple of the living God and you live in us. Nothing can stop us from worshiping you, Father, wherever we are in our different homes. Right now, all those who are participating, Father, all those whose heads are bowed down, you are watching them, oh Father, and you are in their midst. We want to thank you and praise you for this beautiful time that you've given us, where we can come together as a body of Christ and worship the living God. We thank you for the 5 months that have passed, and you allowed us to enter into the 6th month, oh Father Lord. There's so much of uncertainty, so much of death around us, so much of violence, oh Father, anger, corruption, robbery, murder, oh Father Lord. But your eyes are upon your children. You said, oh Father, that you will be a wall of fire around us, and no harm will come upon us, oh Father. You protected us from this terrible virus so far. And we know, Father, that even if a hair of our head falls, you have an account, and Lord, you are aware of it, and nothing will happen to us without your knowledge. We want to thank you and praise you for this beautiful promises that you've given us. For all your promises are yes and amen for those who believe. Even as we meditate on your word, oh Father, we ask you to give us a mind that is at rest. Be still and know that I am the Lord. Teach us to be still at your presence, and you speak, Father Lord, and we are willing to listen. We ask this prayer in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. My friend, for today's scripture portion has been taken from the epistle of Paul to the first epistle of Paul to the Church of Corinth, chapter 3, verses beginning from 1 to 23. आज का जो मनन का पाठ लिया गया है वो लिया गया है पौलुस प्रेरित की पहली पत्री कोरिन्थ चर्च के नाम, उसका 3रा अध्याय 1 से लेकर 23 वचन तक, जहां पर हिंदी में हमें लीड करेंगी मिस अरुणा राय, इंग्लिश में हमें लीड करेंगी मिस शिफा खोसला, एंड नेपाली में हमें लीड करेंगे मिस्टर कुणाल. हिंदी रीडिंग विल बी लेड बाय मिस अरुणा राय, इंग्लिश रीडिंग विल बी read by Miss Shifa Khosla, and Nepali reading will be led by Mr. Kunal. औ ए भाइ हो, तिमीहरूसित आत्मिक कुराहरूसँग बोल्न त होइन, तर शारीरिकहरूसँग ख्रिस्टमा काखे बालकहरूसँग जय म बोल्न सके. मैले तिमीहरूलाई दुधै खुवाए, खादिलो कुरो
त होइन, किनकि तिमीहरू खान सक्दैन थियो, अझसम्म पनि खान सक्दैन, किनभने तिमीहरू चाहिँ शारीरिक नै छौ। किनभने जहाँसम्म तिमीहरूमा डाहा र झगडा छँदैछ, के तिमीहरू शारीरिक र मानिसको चालमा चल्ने भएनौ र? किनकि जब एउटाले म चाहिँ पावलको, अर्कोले म चाहिँ अपोलोसको भन्छ भने के तिमीहरू शारीरिक मानिस भएनौ र? तब अपोलोस के हो र पावल के हो? हरेकलाई प्रभुले दिनु भए झै सेवकहरू ता हुन् र जसद्वारा तिमीहरूले विश्वास गर्थ्यौ। मैले रोपे, अपोलोसले पानी हाले, तर परमेश्वरले चाहिँ चढाउनु भयो। यसकारण न त रोप्ने केही हो, न पानी हाल्ने बढाउने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। अब हामी रोप्ने र पानी हाल्ने एउटै हौ, तर हरेकले आफ्नो आफ्नो मेहनत अनुसार आफ्नै इनाम पाउनेछ। For we are God's fellow workers, you are God's field, God's building. By the grace God has given me, I laid a foundation as an expert builder, but someone else is building on it. But each one should be careful how he builds, for no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. For any man builds on this foundation using gold, silver, costly stones, wood, hay, or straw, his work will be shown for what it is, because the day will bring it to light. It will be revealed with fire, and the fire will test the quality of each man's work. If what he has built survives, he will receive the award, and if it is burned up, he will suffer loss. He himself will be saved, but only as one escaping through the flames. Don't you know that you yourselves are God's temple, and that God's Spirit lives in you? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। कोई अपने आप को धोखा न दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। जैसे लिखा है, वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है, और फिर प्रभु ज्ञानियों के विचार को जानता है कि वह व्यर्थ है। इसीलिए मनुष्य पर कोई घमंड न करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। क्या पौलुस, क्या अपोलोस, क्या कोफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मार्ग, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है, और तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। आमीन। My friends, let us prepare our heart, mind and soul to hear the word of God from his servant, Reverend Dr. John R. Vishwas, and let us look to God in sermon. प्यारे भाई और बहनों, हम प्रभु के पवित्र नाम का धन्यवाद करते हैं आज के इस अच्छे समय के लिए जो उसने हमें दिया है। आज के वचन के लिए अपने आप को तैयार करें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप जो महान हैं, आप जो दयालु हैं, आप जो क्रोध करने में विलम्ब करते परमेश्वर, और आप करुणा निधान हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। आज के वचन के लिए प्रभु आप हमारे मनों को तैयार करें। लॉर्ड, प्रिपेयर हार्ट्स एंड माइंड टुडे फॉर द वर्ड दैट वी आर गोइंग टू लिसन नाउ एंड able to receive it, Lord, so that we may be able to follow it also. We pray, Lord, for people who are suffering today because of this COVID-19, and Lord, we pray for certain people in our congregation also. But thank you, Lord, that you have healed them, and those who are infected, 2-3 people, Lord, we pray in the name of Jesus, touch and heal them, Master. प्रभु उन्हें चंगाई दें, और होने दे प्रभु कि वो भी हमारे सामान बैठ करके आपकी आराधना करें और हमारे साथ सम्मिलित हो सके। आज की इस आराधना पर, आज के वचन पर आपके आशीष हो। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, इन दिनों में जबकि लगभग 3 महीने ज़्यादा हो गए, अब हम लोग इस लॉकडाउन की स्थिति में, हालांकि सरकारी निर्देशों के अनुसार ये लॉकडाउन अब ख़त्म कर दिया गया है बहुत हद तक। अब हमारे बाज़ार खुल रहे हैं, दुकानें खुल रही हैं और कुछ बसेस चल रही हैं, हम भी यातायात कर सकते हैं। लेकिन सावधानी के रूप में अभी तक हमारे चर्चेस को नहीं खुला गया, और अभी तक
ऐसा है और मैं सोचता हूँ कुछ समय तक और ऐसा रहेगा, इसलिए हमें कुछ समय तक और धीरज रखने की आवश्यकता है। लेकिन हम आपके साथ हैं, प्रभु आपके साथ है, हम आपके लिए प्रार्थनाएं करते हैं। मित्रों, आप सब जो एपोस्टल मेथोडिस्ट कलीसिया इंग्लिश, हिंदी, नेपाली चर्च के सदस्य हैं, आप हमारी प्रार्थनाओं में हैं और मैं चाहूँगा आप भी हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें। आज हमारे अध्ययन का विषय होगा, पवित्र वचन का विषय होगा जो पाया जाता है, जो पाठ पढ़ा गया 1 कुरिन्थी उसका 30 अध्याय, और आज हम देखेंगे 16 पद से लेकर के 4 अध्याय के उसके 9 पद तक। टुडे द टेक्स्ट फॉर आवर मेडिटेशन is taken from 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to chapter 4 verse 9, and I hope that this word that is going to be read for us will understand. Try to really follow so that we may understand and take and get the meaning of it and able to grow in the Lord day by day. प्रिय मित्रों, पिछले रविवार को हमने इस बात पर गौर करा था कि परमेश्वर का दास पौलुस कहता है कि हमें इस बात को जानना है कि हम किसके हैं, क्योंकि कुरिन्थ की कलीसिया में कुछ लोगों ने कहा कि हम पौलुस की तरफ हैं, कुछ ने कहा कि हम अपोलोस की तरफ हैं। इस प्रकार से उनके अंदर बंटवारे को देखते हैं। और उसके पहले वो कहता है कि तुम्हारे अंदर चूंकि तुम शारीरिक हो, वो कहता है बिकॉज यू आर कार्नल, यू आर ऑल्सो फिल्ड विद ऑल टाइप ऑफ मैलिस एंड स्ट्राइप एंड जेलसी फॉर ईच अदर। तो पौलुस ने उन दो बातों पर गौर करा और हमने इस बातों पर गौर करा पिछले रविवार को। और मैंने आपको ये बताया था कि प्रभु में नया बनने का अर्थ क्या है। प्रभु में नया बनने का अर्थ यह है कि प्रभु यीशु मसीह हमें नया बनाता अंदर से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिकम न्यू पर्सन इन क्राइस्ट? एंड लास्ट संडे वी सॉ दैट जीसस मेक्स अस न्यू बाय फॉरगिविंग आवर सिंस। वो हमारे पापों को क्षमा करता है और हम उसके दिए पवित्र किए जाते हैं। वी आर बीइंग मेड होली because of Jesus Christ, because of his blood, and therefore in our spiritual arteries we accept the blood of Jesus Christ which start flowing, making us new creation. और हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थी के 5 अध्याय के 17 पद में लिखा है कि अब जो यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। So therefore we are being made new in and through Jesus Christ. Through the blood of Jesus Christ, we start flowing in our inner arteries of our spiritual life. I said physically, this is the blood of our parents which flows in our arteries, in our heart. Our heart pumps that blood, purify that blood which is being given to us by our parents. But spiritually, the blood of Jesus Christ start flowing in our arteries of spiritual life and giving us a new life. And therefore, carnal man and spiritual man has some distinguishment, definitely some differences. The spiritual man is being examined by the Lord, His Holy Spirit, and He does it through our conscience. वो हमारे विवेक को परखता है और हमारे विवेक की अगुवाई करता है उन मार्गों में जो उसका मार्ग है। लेकिन जो शारीरिक व्यक्ति है, the carnal man is, he keeps his attention toward the things of the world. इसलिए हमें आत्मिक व्यक्ति बनने की आवश्यकता है और उसमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अब इन्हीं विचारों को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसी अध्याय के 1 कुरिन्थी के अध्याय के 30 अध्याय के उसके 16 पद पर और उसके आगे बातों को देखेंगे। जहाँ लिखा है, पौलुस कहते हैं पवित्र आत्मा के अगुवाई से, सेंट पॉल टॉक्स अबाउट बीइंग फिल्ड विद द होली स्पिरिट। He is not talking a single word. He has not mentioned a single word here without the direction of the Holy Spirit. And therefore, let us understand. हम इस बात को समझे कि संत पौलुस उन बातों को करता हमारे बीच में जिसको उसने पवित्र आत्मा के अगुवाई में हमारे लिए प्राप्त करी थी। और लिखता है 16 पद यहाँ पर 30 अध्याय का 1 कुरिन्थी, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। What he writes here, do you not know that you are God's temple and that God's Spirit dwells in you? If anyone destroys God's temple, God will destroy him, for God's temple is holy and you are that
टेम्पल। अब ये बात हमें अपने आत्मिक जीवन में समझने और जानने की आवश्यकता है। मैं आपके सामने उन पदों को पढ़ूंगा जिनका वर्णन उस पहले मंदिर के लिए किया गया, और हमारे बाइबल में इसका वर्णन हम पाते हैं और इस बात को हम देखते हैं, और इस बात को अपने जीवन के अंदर हमें सचमुच में लाने की और उसको आत्मसात करने की आवश्यकता। क्या है वो मंदिर जिसके लिए यहाँ पर लिखा गया है? निर्गमन उसका 26 अध्याय और उसके पहले पद से। And to read the book of Exodus chapter 23, it talks about the first temple that was built. It was a tabernacle. वो मंदिर नहीं था, लेकिन वो मिलाप वाला तंबू था जो उस मंदिर का रूपक है, जो बाद में चल करके सुलेमान ने बनाया। सुलेमान ने उसको बनाया उसने, क्योंकि तब तक सुलेमान के दिनों तक परमेश्वर का वाचा का संदूक तंबू में रहता था, और उस तंबू में ही जो मिलाप वाला तंबू था इस्राएल के लोग आराधना करते थे, लेकिन सुलेमान ने मंदिर बनाया। तो ये पहला मंदिर है जो परमेश्वर के द्वारा, उसके निर्देशन के द्वारा बनाया गया। आज हम इस नए मंदिर को, जो हमारा शरीर है, उसके बारे में समझने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए मैं चाहता हूँ कि हम इन बात को देखें। तो हम देखेंगे निर्गमन उसका 26 अध्याय पहले पद से। फिर निवास स्थान के लिए 10 पर्दे बनवाना, इनको बटी हुई सनी वाले और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का कढ़ाई के काम किए हुए उन करूबों के साथ बनवाना। एक पर्दे को की लंबाई 28 हाथ, चौड़ाई 4 हाथ की हो, और सब पर्दे एक ही नाप के हो। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सब पर्दे एक ही नाप के हो। एक पर्दा दूसरे पर्दे की लंबाई 28 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हो। सब पर्दे एक ही नाप के हों। 5 पर्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हों, और फिर जो 5 पर्दे रहेंगे वे भी एक दूसरे से जुड़े हुए हों। और जहाँ ये दोनों पर्दे जोड़े जाएं, वहाँ के दोनों छोरों पर नीले नीले फंदे बनवाना। दोनों छोरों में 50-50 फंदे ऐसे लगवाना कि वे आमने सामने हो। और सोने के 50 आंकड़े बनवाना, और पर्दों के पंचों को आंकड़ों के द्वारा एक दूसरे से ऐसा जुड़वाना कि निवास स्थान मिलकर एक हो जाएं। फिर निवास स्थान के ऊपर तंबू का काम देने के लिए बकरी के बाल के 11 पर्दे बनवाना। एक एक पर्दे की लंबाई 30 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हो, और 11 पर्दे एक ही नाप के हों। और 5 पर्दे अलग और फिर 6 पर्दे अलग जुड़वाना, और 6वें पर्दे को तंबू के सामने मोड़कर दोहरा कर देना। और तू 50 आंकड़े उस पर्दे के छोर में जो बाहर से मिलाया जाए, और 50 ही आंकड़े दूसरे की और पर्दे की छोर में जो बाहर से मिलाया जाए बनवाना। और पीतल के 50 आंकड़े बनवाना, और आंकड़ों को फंदों में लगाकर तंबू को ऐसा जुड़वाना कि वह मिलकर एक हो जाए। और तंबू के परंदों पर पर्दा लटका हुआ भाग, अर्थात जो आधा पट रहेगा, वह निवास की पिछली ओर लटका रहे, और तंबू के पर्दों की लंबाई में से हाथ भर इधर और हाथ भर उधर निवास के ढकने के लिए उसके दोनों ओर लटका हुआ रहे। फिर तंबू के लिए लाल रंग के रंगी हुई मेढ़ों की खालों का एक ओढ़ना, और उसके ऊपर सुइयों की खालों का भी एक ओढ़ना बनवाना। फिर निवास को खड़ा करने के लिए बबूल की लकड़ी के तख्ते बनवाना। एक एक तख्ते की लंबाई 10 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो। एक एक तख्ते में एक दूसरे के जुड़े हुए 2-2 चूल्हे हों, और निवास के सब तख्तों को इसी भांति से बनवाना। निवास के लिए जो तख्त तू बनवाएगा, उनमें से 20 तख्ते तो दक्षिण के लिए हों, और 20 तख्तों के नीचे चांदी की 40 कुर्सियां बनवाना, अर्थात एक एक तख्त के नीचे उसके चूल्हों के लिए 2-2 कुर्सियां। निवास की दूसरी ओर अर्थात उत्तर की ओर के लिए 20 तख्ते बनवाना, और उसके लिए चांदी की 40 कुर्सियां बनवाना, अर्थात एक एक तख्ते के नीचे 2-2 कुर्सियां बनाना। निवास की पिछली और अर्थात पश्चिम की ओर 6 तख्त बनवाना, और पिछले भाग में निवास के कोनों के लिए 2 तख्ते बनवाना, और ये नीचे से 2-2 भाग के हों, और दोनों भाग ऊपर के सिरे तक एक एक कड़े में मिलाए जाएं।
दोनों तख्तों का यही रूप हो, ये दोनों कोनों के लिए हो और 8 तख्ते हों और उनकी चांदी की 16 कुर्सियां हो, अर्थात एक एक तख्त के नीचे 2-2 कुर्सियां। और फिर आगे इसके बारे में और बहुत सारी बातें लिखी गई है। मैंने क्यों पढ़ा है इसको? Why did I read all this thing? And you can read in English also because there is quite a long description about the tent of meeting where God met with His people. And therefore, this is very, very important for us to understand how God directed them, the tabernacle. Now, this is the picture of the temple here in the New Testament. God directed Moses and He said to them, remember to do exactly as I have told you. Why God was interested? Because this is the in connection of the temple in the New Testament, and again in New Jerusalem we'll see something like this, and the Bible says so. And therefore we need to understand that God in His understanding, in His knowledge, foreknowledge, made everything possible. And here St. Paul says that, don't you know, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? Don't you know that you are the temple of the living God? The tabernacle in the Old Testament and temple in the New Testament, and now He lives in our hearts. वो हमारे हृदय में निवास करता। इसलिए जो पर्दा वहाँ पर था, महापवित्र स्थान को जो अलग करता था पवित्र स्थान के स्थान से, जब यीशु मसीह इस दुनिया से जा रहे थे, जब उसने कहा पूरा हुआ, जब उसका प्राण निकल करके पिता के पास गया, तो लिखा है कि मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, symbolizing that now the old covenant has been fulfilled by Jesus the Son of God. And He said it in Matthew chapter 5 verse 17 that I have come not to abolish the law. मैं पुरानी व्यवस्था को समाप्त करने नहीं आया, लेकिन पूरा करने आया। और इन दोनों चीजों में फर्क है फ्रेंड, that's different between these two words, abolishing and fulfilling. Jesus did not come to abolish the old law and then forcefully make His new law imposed. No. He, by dying on the cross of Calvary, He gave Himself as a willing sacrifice, as expiation, as atonement for our sins. प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान होकर के स्वतः उसने अपने आप को दे दिया हमारे पापों के लिए। इस प्रकार से उसने उस व्यवस्था को पूरा कर, उसने कहा कि आई हैव कम टू फुलफिल द लॉ। द ओल्ड टेस्टामेंट पैटर्न ऑफ द टैबरनेकल and New Testament pattern of our life goes together, because now St. Paul says that don't you know that you are the temple of living God? He dwells in us, and therefore Peter says very clearly, इसलिए पौलुस पतरस कहता है, बहुत ही अच्छी प्रकार से कहता है कि हम को पवित्र बनना है, क्योंकि वो पवित्र है, वो पवित्र है। पवित्रता परमेश्वर के स्वभाव में है। Holiness exists in His nature. He is holy God. अब पहला पतरस उसके 1 अध्याय के 16 पद में इस बात का वर्णन किया गया। तो यहाँ पर पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम में से हर एक व्यक्ति ईश्वर के मंदिर हो? मित्रों, अब हम थोड़ा सा गहरा में चलते हैं और मैं चाहूंगा कि हम इन बात पर गौर करें। जो हमारे पास ये बिल्डिंग है, चर्च बिल्डिंग, इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। एपोस्टल मेथोडिस्ट चर्च के पास बहुत ही अच्छी बिल्डिंग है, लोग आते हैं और एडमायर करते हैं, कितनी अच्छी बिल्डिंग बनाएगी, इसमें काफ़ी पैसा लगा होगा। और हमारे उन लोगों ने जिन्होंने इनके लिए दुआएं करी और जिन्होंने इसको बनाया, हम उनके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद का कारण है। लेकिन क्या वास्तव में ये परमेश्वर का मंदिर है? वचन के अनुसार ऐसा नहीं है। यहाँ पर आराधक लोग जो हैं वो परमेश्वर का मंदिर है, जो है आके उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनके दिल में रहता, उनके मन में रहता। और इस बात को हमें समझने का आवश्यकता। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी क्लियरली। गॉड ड्वेल्स इन अस, एंड देयरफॉर व्हेन यू कम टू वर्शिप द लॉर्ड इन दिस सेंचुरी, द प्रेजेंस ऑफ गॉड इज देयर बिकॉज ऑफ द पीपल ऑफ गॉड, because of the people of God. And therefore the preparation that we do is good of this church. We keep it neat and clean, and even nowadays we are having this lockdown, but every day
the compound is swept and kept clean and nicely. It looks beautiful, presentable. It looks very nice. आप कभी भी आइए यहाँ पर, आप देखेंगे चारों तरफ सफाई है. ऐसा हम इसको रखना चाहता है. बेसमेंट भी बिल्कुल साफ और नीट एंड क्लीन. जो किचन का भी है वो भी नीट एंड क्लीन है. लेकिन जो मंदिर परमेश्वर का है वो कौन है? वो आप और मैं. We are the temple of living God. And this secret has to be understood, has to be grasped by us, that we are the temple of the living God. क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? Do you not know that you are the God's temple? And what God's Spirit, where God's Spirit dwells in you, उसका आत्मा हमारे अंदर निवास कर. इसलिए हमें अपने आप को पवित्र होने की आवश्यकता, शुद्ध होने की आवश्यकता. मित्रों, दुनिया की तमाम बातों से जो हमारे आत्मा को दूषित करती हैं, उससे हमें अपने आप को अलग करने की आवश्यकता. क्योंकि एक दिन आगे जब हम उसके सामने खड़े होंगे, और परमेश्वर हमारे बिल्डिंगों का न्याय नहीं करेगा, हमारे इन बड़े बड़े कैथेड्रल जो बनाए अच्छे, उनका न्याय नहीं करेगा. वो तो है जो हमने बनाया, लेकिन वो न्याय हमारा करेगा, हम जो उसके सामने खड़े होंगे. इसलिए इस बात को हमें जानने और समझने की आवश्यकता है. A spiritual man who is truly obediently walking with the Lord is the true temple of the living God. एक आत्मिक व्यक्ति जो प्रभु की आज्ञा को मानते हुए उसके साथ चलता है यीशु मसीह के नाम से, वो उसका मंदिर है और परमेश्वर वहां निवास करता है. तभी तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, उसके अनुसार चलोगे, तो लोग जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो. एक एक व्यक्ति यीशु मसीह का शिष्य है, उसके पाप उसके लहू के द्वारा धुल गए हैं, शुद्ध हो गए हैं, वो उसका मंदिर है और परमेश्वर उनमें निवास करता, उनमें निवास करता. इस बात को आप पर मुझे जानने की आवश्यकता. दिस इज ए मिस्ट्री फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट ईच वन ऑफ अस मेक आवर लाइफ should make it clean, neat and clean, spiritually. And we read very clearly the fruit of the Spirit, about the fruit of the Spirit in the book, letter of St. Paul to the church at Galatia. और हम पढ़ते हैं उसके पत्र को, पौलुस का गलतियों के पत्र को पढ़ते हैं, जहाँ के उस अध्याय के 5 अध्याय के अगर आप पढ़ें तो 22-23 पद में आत्मा के फलों का वर्णन, लेकिन उसके पहले अगर देखें तो शरीर के फलों का वर्णन है. ये कार्नल मैन्स fruit are also mentioned there in the earlier verses of chapter 5 of the letter of Paul to the church at Galatia. गलतियों के पत्री के 5वें अध्याय के 18, 19, 20 पद में पौलुस शारीरिक व्यक्ति के फलों का जिक्र करता है, लेकिन 22-23 में वो जिक्र करता है आत्मा के फलों का, जो उनके जीवन के फल हैं जो परमेश्वर के सचमुच में मंदिर हैं. इसलिए हमें इस बात को समझना, जानने की आवश्यकता. इसलिए यहाँ पर आगे कहा गया है, आगे हम इसको देख लें. पहले यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो. इसलिए हमें बहुत ही सावधानी के साथ चलने की आवश्यकता है. वेरी वेरी केयरफुल माय फ्रेंड्स. इन दिस जर्नी ऑफ आवर फेथ we need to be very very careful so that we walk with him day by day with holiness, with his fear, with his wisdom, with his knowledge, with his revelation, with his Holy Spirit's guidance, so that our preparation is acceptable to him, ताकि हमारी जो तैयारी उसके सामने पसंद हो और वो उससे खुश हो सके. दूसरी बात का वर्णन यहाँ पर क्या गया, पौलुस कहता 18% देखते हैं. The second point that I had to like to discuss today with you, 18 verse. Let no one deceive himself. If anyone among you thinks that he is wise in this age, let him become a fool that he may become wise. अब वो कहता है कोई अपने आप को धोखा न दे कि यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए. क्या मतलब इसका? मतलब ये है कि पौलुस इस बात को स्पष्ट करता है कि तुम जो आत्मिक होना चाहते हो, तुम जो आत्मिक विश्वासी हो, मैं चाहता हूं कि तुम अपने आप को संसार में
प्रभु के लिए मूर्ख समझो, मूर्ख जानो अपने। पौलुस खुद कहता है अपने बारे, वो कहता कि मैंने तमाम बातों को जो मेरे जीवन के लिए घमंड का कारण हो सकता था, मैंने उनको कूड़ा करकट समझा। आई हैव कंसिडर्ड ऑल माई थिंग्स दैट कैन बोस्ट माई लाइफ, कैन पफ्ट अप माई लाइफ, आई हैव काउंटेड देम ऑफ नथिंग। मैंने उस सब को कुछ नहीं समझा है। वो यहाँ पर ये कहना चाहता है, वो कहता है कि हम इस बात को जानें कि अगर कोई अपने आप को धोखा ना दे, कि यदि तुम में से कोई संसार में अपने आप को कुछ ज्ञानी समझे। हम में से बहुत से लोग हैं जो बहुत बड़े अपने आप को सोचते हैं, लेकिन हमें दीनता से चलने की आवश्यकता है। प्रभु ने जो ज्ञान दिया है उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें, लेकिन उसके द्वारा किसी को ठेस ना लगे, किसी के आत्मिक जीवन में रुकावट ना हो जाए। इसलिए हमें अपने जीवन को प्रभु के डर और भय में आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हम उन बातों को जाने, उन बातों को समझे जो प्रभु हमसे चाहता है, ताकि हम उसके योग्य हो जाएं, ताकि हमारी चाल जो है, मसीह चाल जो है, वो उसके योग्य हो जाए और हम उसमें बढ़ने वाले बने पूरी दीनता के साथ। तभी तो प्रभु यीशु मसीह कहता है ना पाड़ी उपदेश में, धन्य वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे खिलाफ सब बातें कहें, तब तुम आनंदित मगन होना कि तुम्हारे स्वर्ग में जो तुम्हारा वास्तविक घर है बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन नबियों को जो तुमसे पहले तीसरे से सताया था। तो हमें इन बातों को समझने की आवश्यकता मित्रों कि इस संसार के अंदर अगर हम अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं तो गलती करते हैं। हमारा जो ज्ञान है परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। यहाँ लिखा है जो अपने आप को ज्ञानी समझे वो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। उस ज्ञान को जो प्रभु और हमारे बीच में रुकावट बनता है, उससे हमें अपने आप को अलग करने की आवश्यकता है। द नॉलेज विच बिकम्स obstacle in between your and my fellowship, the fellowship between God and you need to be removed completely. It may be anything, वो कुछ भी हो सकता है। और हम में से बहुत से विश्वासी ऐसे हैं जो उन बातों को ही देखते रहते हैं, उन बातों के को पैरामीटर बना करके जो प्रभु के सेवक हैं, प्रभु के लोग हैं, उनको भी जांचने लगते हैं, और वो गलत है। ऐसा नहीं करने की आवश्यकता। We should not do that. Because the people who have given their life to Christ, their talents to Christ, their entire everything for Christ, they are used by the Lord. उनका जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होता है। और इसलिए हमें उनका सम्मान करना है और अपने जीवन के उन बातों को जो हमारे जीवन को प्रभु से हटाती है, हमारे जीवन की बातें जो प्रभु से हमारे जीवन को अलग ले जाती है, उससे हमें अपने आप को अलग करना है। And that is called emptying self. खाकसारी इसी को कहते हैं। खाकसारी केवल ये नहीं कि बोलते रहे खाकसारी 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 और अंदर सब दुनिया की बातें भरी, और वो सारी बातें हमारे कामों से दिखने में आती। कितनी बार जो प्रभु के सेवक हैं उनके लिए गलत गलत बातें बोली जाती बाहर, और लोगों को बरगलाया जाता है जबकि उन्होंने ऐसा कुछ करा नहीं है। इसलिए सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती। इसलिए उन सब बातों को अपने जीवन से हमें अलग करने की आवश्यकता है। प्रभु आप हमें क्षमा करें ताकि हम आपके लिए चलने वाले बने, और जो आपका प्रचार करते, जो आपका वचन सुनाते प्रभु, उनके लिए हम प्रार्थना करें। क्या कितनी बार अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करिए, सचमुच प्रार्थना करें। अगर प्रार्थना करेंगे तो आपके पास बोझ होगा और आप उनके बारे में अच्छी बातें देखेंगे और उनके द्वारा अच्छी बातें सुनेंगे, क्योंकि अच्छी बातें कहते हैं वो बदला लेने के लिए आपको कुछ नहीं कहते हैं। ये उनकी कमजोरी ना समझिए आप, ये उनकी दीनता है कि वो शांत रहते हैं और शांत रहेंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि न्याय करना मेरा काम है। ईश्वर कहता है तुम मत न्याय करो। इसलिए यहाँ पर जो आत्मिक व्यक्ति है वो उन बातों को अलग करता है जीवन से जो उसके जीवन को घमंड में बना सकता है। और यहाँ पर साफ साफ पौलुस कहते हैं कि धोखा ना दे, यदि तुम में से कोई संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। आगे लिखा 19 पद में लिखा है, क्योंकि संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। 19 verse 4, the wisdom of this world is folly with God, for it is written, he catches
द वाइस इन देयर क्रेफ्टीनेस। यहाँ लिखा है, जैसा लिखा है कि वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। और ऐसा आप जानते, आप देख सकते हैं, वे लोग जो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं, बहुत समझदार समझते हैं, वो अपने ही ज्ञान के अंदर ट्रैप हो जाते हैं कभी कभी, और फिर वो बाद में आते हैं कि भाई साहब दुआ कर दीजिए, मेरे जीवन में परेशानी हो रही, कठिनाई हो रही है। और उस समय भी प्रभु के सेवक लोग उनको डांटते नहीं, प्यार से समझाते हैं कि भाई ठीक है, आपने बोल दिया तो आपके अंदर सुधार प्रभु दे, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और ये बाइबल के अनुसार है। संत पौलुस भी यहाँ पर कहता है कि वे जो इस बात को समझते कि हम बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं, प्रभु के नज़रों में वो मूर्ख हैं, क्योंकि संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। और उसका एक ही कारण है, बहुत से कारण, एक कारण यह है कि संसार का ज्ञान उस व्यक्ति को ऊंचा उठाता है, ईगोइस्टिक व्यक्ति बनाता है, और जहां उसके ईगो के अंदर कुछ चोट लगती है वो तिलमिला जाता है, क्योंकि उसने अपने ईगो को इतना ऊंचा कर दिया कि ईगो में कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो उसके जीवन में लगे। लेकिन जिसने अपने ईगो को नीचा कर दिया है, जिसके जीवन में उसका जो ईगो है, उसकी जो खुदी है वो नहीं के बराबर है, वो बुरा नहीं मानता, झुंझलाता नहीं। यही तो है प्रेम का स्वभाव। सच्चा प्रेम बुरा नहीं मानता, झुंझलाता नहीं और अपना बदला नहीं लेता। 1 कुरिन्थी 13 अध्याय को पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक यही बात यहाँ है कि जो ईश्वर का ज्ञान है, जो स्वर्ग का ज्ञान है, वो इस संसार के ज्ञान से बहुत ऊंचा है, और संसार का ज्ञान ईश्वर के ज्ञान के सामने मूर्खता है। और ईश्वर का ज्ञान क्या है? नीति वचन 1 अध्याय 6, 7, 8 पढ़ लीजिएगा। ईश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। उसके भय को मानने की आवश्यकता, उस बात को महसूस करना है कि वो मुझे देखता है। मित्रों, कभी कभी हम ये सोचते हैं कि भाई हमारा मसीह जीवन जो है परखा तब जाता है जब हम सब लोगों के सामने होते। जी नहीं, ये गलत है। मसीह जीवन परखा तब जाता है जब अकेले में होते हैं, जब अकेले में होते हैं। आपको कोई नहीं देखता, आप सोचते हैं तो आप गलत भी कर सकते हैं, और हम करते भी हैं। लेकिन परमेश्वर की आंखें उस समय भी हमारे ऊपर लगी रहती हैं, और तब हमें ये सोचना है कि अगर यीशु मसीह मेरी जगह होता तो क्या उन कामों को करता जो मैं अकेले में कर रहा हूँ, अंधेरे में करना। और बहुत से काम हमने अकेले में करे, ना केवल अपने जीवन के नुकसान के, लेकिन समाज के नुकसान के लिए करा हमने अकेले के अंदर। जब कोई नहीं देख रहा था, वो काम कर रहे हैं, इधर के उधर कर रहे हैं, जो परमेश्वर देखता है। और अगर आज आप सुन रहे हैं मेरी, और अगर हमने ऐसा कोई काम कराया तो कहें, प्रभु मुझे क्षमा करिए, लॉर्ड फॉरगिव मी, बिकॉज आई हैव चैलेंज्ड यू इन माई लोनलीनेस। व्हेन आई वाज अलोन लॉर्ड, आई डिड मेनी थिंग्स दैट आर नॉट इन अकॉर्डिंग टू योर वर्ड। हमें क्षमा मांगने की आवश्यकता है। अब पौलुस यहाँ पर इसी बात को कहता है कि संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। जैसे लिखा है कि वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देगा। और फिर प्रभु कहता है, प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जानता है कि वे व्यर्थ हैं। वो ज्ञान जो केवल संसार का है, प्रभु जानता कि ये ज्ञान उनका व्यर्थ है, क्योंकि इनके फैलने से लोग बरगलाए जाते हैं, लोग गड़बड़ में फंस जाते हैं, लोग दुविधा में फंस जाते हैं। आप इसको देखिएगा, परख कर देखिएगा। बहुत से लोग हैं शिक्षा देने वाले, वो अपने ज्ञान को ऐसा बखान करते हैं ईश्वर के ज्ञान से अलग हो करके, और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इसको मानो उसको छोड़ो, इसको मानो उसको छोड़ो, किसको क्या करूं, क्योंकि संसार का ज्ञान है। अच्छा लगता है सुनने में, उसका बेस भी साइंस होगा, आर्ट्स होगा, या फिलोसॉफी होगी, कुछ भी है। लेकिन जहाँ ईश्वर की बातों को अलग रख करके हम अपना ही ज्ञान बखान करते हैं, तो पौलुस कहता है ना 1 कुरिन्थी 13 अध्याय में कि ज्ञान हो तो मिट जाएगा, लेकिन अगर स्वर्गीय प्रकाशन हो तो बना रहेगा। और उस प्रकाशन में 3 बातें हैं, विश्वास, आशा, प्रेम। वो बने रहेंगे। विश्वास बना रहेगा, आशा बनी रहेगी, और प्रेम बना रहेगा, क्योंकि ये परमेश्वर का स्वभाव है। उसके स्वभाव की को जब हम अनुसरण करते हैं तो ये तीनों बातें हमारे अंदर आती जाती है। क्या आती है? विश्वास बढ़ता जाता है,
आशा मजबूत होती है और प्रेम हम इस संसार में दर्शाते हैं। इसलिए हमें इन बातों को अपने जीवन के अंदर बहुत ही गहराई से जानने समझने की आवश्यकता है। तीसरी बात 21 पद, इसलिए मनुष्य पर कोई घमंड ना करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। क्या पौलुस क्या है, क्या पौलुस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है और तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का। अंततः हमें किस बात पर घमंड करने की आवश्यकता है? मसीह पर और परमेश्वर पर, क्योंकि सारी बातें पौलुस कहता है 21 पद से, सो लेट नो वन बोस्ट इन मैन, फॉर ऑल थिंग्स आर योर्स, वेदर पॉल or Apollos or Cephas or the world or life or death or the present or the future, all are yours। जब तक हम इस दुनिया में हैं ये सारी बातें हमारी हैं, चुनाव हमारा है, निर्णय हमारा है, ये हमारे हैं। इनके बारे में पढ़ें, इनके बारे में जानें, इनके बारे में सीखें, ये हमारे लिए मौका है। और यहाँ तक पौलुस कहता है कि क्या जीवन, क्या भविष्य, मृत्यु और या भविष्य या वर्तमान, सब कुछ हमारा। यहाँ मित्र एक बहुत ही बड़े पते की बात है। आप अपने अनंत जीवन के आप कहाँ होंगे उसका निर्णय आपको यहाँ करना पड़ता है। इस दुनिया में एक बार सांस चली जाए फिर ये निर्णय नहीं कर पाएंगे। प्रभु ने आपको मौका दिया कि आप इस जीवन के दौरान अपने भविष्य के लिए निर्धारण करने के आपको कहाँ रहना है, मुझे कहाँ रहना है, इसका निर्धारण नहीं होता, मरने के बाद नहीं होगा। कभी कभी वो लोग जो थोड़ा अधूरा ज्ञान रखते हैं वो कहते हैं भाई मरने के बाद खुदा के पास चले गए। अरे खुदा के पास तो उस समय इनको जाना था जब जीवन में थे, उनको निर्णय लेना था। और अगर मैं ये कहूँ कि जीवन भर तो खुराफाती करते रहे, दारू पीते रहे, दुनिया भर की बुरी बातें, मरने के बाद वो संत हो गए, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो ये सब कहते हैं जिनका अधूरा ज्ञान है, अधूरा ज्ञान है, ये हो नहीं सकता। लोगों को बरगलाने के लिए आप कुछ भी बोल दीजिए, लोग शांत बैठे रहते, खड़े रहते हैं, वहाँ कोई नहीं बोलता। और मैंने कई बार इन बातों को देखा है कि जब इंसान जिंदा था तो वो पीता भी था, दुनिया भर के खुराफातियाँ करता था, लेकिन जब उनकी डेथ हो गई तो भाई वो खुदा के पास चले गए। क्या खुदा के पास की जो जगह है वो अपवित्र जगह है? जी नहीं। तो पवित्र होने के लिए, उसके पास जाने के लिए, उसको पहचानने के लिए निर्णय हमें इस दुनिया में करना पड़ता, इस संसार में करना पड़ता। और एक बार आपने ऐसा कर लिया तब आप खुदा के घर में पहुंचाए गए, आपका नाम वहाँ लिख दिया गया। मरने के बाद किसी का नाम वहाँ नहीं लिखा जाता, जीते जी लिखा जाता, क्योंकि जीते जी आप निर्णय ले सकते हैं, मरने के बाद कोई निर्णय नहीं ले सकता। आफ्टर डेथ nobody can decide anything for him or herself, and therefore we decide our future while living in this world. Therefore Paul says, your is life, your is death, your is present and your is future। सब कुछ तुम्हारे हाथ में किया गया इस दुनिया के अंदर। इसके बाद जो कुछ तुम्हारे पास होगा, जिसमें तुम होगे, वो तुम्हारे जीवन के निर्णय के परिणाम स्वरूप होगा। मृत्यु के बाद कोई निर्णय नहीं होता। इसलिए आप याद रखिएगा इस कहानी को, जो लाजर और उस धनी व्यक्ति के बारे में। दोनों मर गए और धनी व्यक्ति ने अपने को कहाँ पाया? जहाँ रोना दांत पिसना था। और उसने लाजर को देखा आंख उठा करके कि वो अब्राहम की गोद में बैठा है। उसने कहा, हे पिता अब्राहम, इसको भेज दे पृथ्वी पर, क्योंकि मेरे 5 भाई और हैं, मैं नहीं चाहता कि इस तड़पने की जगह में आए। तो अब्राहम ने क्या कहा? उनके पास मूसा की किताबें हैं, उसको पढ़ें देखें। तब उसने क्या कहा कि उसको भेज दे मेरे पास कि इस उंगली से एक बूंद पानी मेरी जीभ में डाले। अब्राहम ने क्या कहा कि कोई भी यहाँ से वहाँ नहीं जा सकता और वहाँ से यहाँ नहीं आ सकता। निर्णय संसार में करना था, तुमने नहीं करा। और अभी अगर तुम अपने भाई की बात करते हो तो उनके पास मूसा की किताबें हैं, उनको मान करके उनको निर्णय लेना है। एक बार सांस निकल जाए फिर कोई निर्णय नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। इस बात को जानने और समझने की आवश्यकता।
इस बात को जानने समझने की आवश्यकता है। जब तक जीवन है, जब तक सांस है, तब तक आस है। सांस निकल जाए, आस खत्म। ये बाइबल सिखाती, मैं नहीं कहता। इसलिए हमें अपने जीवन के बारे में मित्रों बहुत ही सावधानी से तैयारी करने की आवश्यकता है कि जब हम इस दुनिया में हैं, क्या हमने अपने जीवन प्रभु को दिया है, क्या अपने जीवन को हमने प्रभु की वेदी पर रखा है। यह निर्णय हमें यहां करने की आवश्यकता है। अब चौथी बात, 4 अध्याय के पहले पद में, जिसको हमने पहले भी देखा था कुछ हफ्तों पहले। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। अब एक आत्मिक व्यक्ति जो है वो परमेश्वर के भेदों का भंडारी है। A spiritual man is the custodian of the things of God, steward of the mysteries of God. A spiritual man is the steward of the mysteries of God. And how you and I become the steward of His mysteries? Because the moment I have decided to follow Christ, God starts revealing His mysteries to me in dreams and through His word that we have as in our hand as the word of God. This is the mystery of God, and many people do not know because they don't read, and they don't read because they have not understood the mercies of God. They have not made their commitment to Jesus Christ, and therefore it is needed. हमें अपने जीवन को उसके हाथ में सौंपना है, और जब हम सौंप देते हैं तो उसके वचन को पढ़ते हैं और उसके वचन की बात तो हम समझने लगते हैं और उसके अनुसार चलने लगते हैं। यही तो अनंत जीवन है। यीशु मसीह ने वो दृष्टांत कहा था ना कि एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे, पक्षियों ने चुग लिया। कुछ चट्टानों में गिरे और चट्टान में जड़ न होने, मिट्टी न होने कारण उग तो आए, लेकिन थोड़े समय के अंदर धूप पड़ी और सूख गया। कुछ बीज गिरे झाड़ियों में और वो बड़े, लेकिन झाड़ियों ने उनको बढ़कर दबा दिया। लेकिन कुछ गिरे अच्छी भूमि पर। क्या हम अच्छी भूमि के समान है? प्रभु हमें अच्छी भूमि बनाता है, हमारे हृदय को अच्छी भूमि के समान बनाते हैं कि हम उसके वचन को सुने, उस पर गौर करें, उसके अंदर चलें। ये जो बाइबल स्टडी का सेशन हम रख रहे हैं रोज, अभी मैं सोचना है पादी साहब को अच्छा लगता है जी? नहीं, अच्छा तो मुझे हर बात लगता है। अच्छे लगने के लिए हम आए यहाँ पर ताकि मेरे द्वारा कलीसिया की सेवा हो, प्रभु की सेवा हो। लेकिन सबसे बढ़कर बात यह है कि आपको ये वचन बताया जाता है, हम सब मिलकर सीखते हैं ताकि हमारा विश्वास मजबूत किया जाए। और जब परीक्षा हमारे जीवन में आए तो हम उस पर जयवंत हो सकें। इसलिए बाइबल अध्ययन के सेशन है। इसलिए मैं आपसे बार बार हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप पौन घंटा 1 घंटा संसार के सब कामों को छोड़ करके इसमें भाग लें। यह आपके आत्मिक जीवन के लिए बहुत जरूरी है। एंड दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्ट यू ऑल पीपल दैट leaving all the work, you complete all your work, finish all your work, and then sit down for at least quarter hour and 1 hour from 7:30 to 8:30. Listen to this word. This is the food for your soul. ये मेरे और आपके आत्मिक जीवन के लिए भोजन है, और ये भोजन अतुलनीय है। This food cannot be purchased by anything. This is precious word of God. And that is why this is being taught here. And you read the word of God, because this makes our heart, our spiritual life stronger and strengthened. You know, when this class group met in the time of John Wesley, क्या आप जानते हैं कि जब क्लास के लोग मिलते थे जॉन वेस्ली के ज़माने में हर थर्सडे को, तो सबसे पहला सवाल क्या होता था? व्हाट आर द फर्स्ट क्वेश्चन? इज योर सोल प्रॉस्परिंग? इज योर सोल प्रॉस्परिंग? क्या आपकी आत्मा बलशाली हो रही है, ताकतवर हो रही है, कमजोर पड़ी है? क्यों पूछा उन्होंने? क्योंकि जानते थे कि मनुष्य को ईश्वर के आने वाले क्रोध से भागने का। He asked this question because he knew very well that we need to run away from the wrath of God, which is approaching very soon. और उस समय कोई बच नहीं पाएगा, क्योंकि लिखा है कि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। इसलिए हमें प्रभु को अपने जीवन में देने की, अपने आप को देने की आवश्यकता है। उसको अपने जीवन में प्रभु मानने की आवश्यकता है, उसके साथ चलने की आवश्यकता है, ताकि हम उस क्रोध से बच जाएं और प्रभु के सनातन स्थान में अनंत काल तक रह सकें।
इसलिए हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। फिर यहाँ भंडारी के लिए बात देखी जाती है कि वो विश्वास योग्य निकले। वी नीड टू बी फेथफुल। अ स्पिरिचुअल मैन इज ए फेथफुल सर्वेंट ऑफ गॉड। हम जो अपने आप को प्रभु के सेवक कहते हैं, आत्मिक जन कहते हैं, क्या हम विश्वास योग्य हैं? फेथफुलनेस इन आवर ओन पर्सनल लाइफ। एवरी मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप, डू वी रीड द वर्ड ऑफ गॉड? Do we spend time with the Lord in quiet time? Faithful in our corporate worship. Now for last 3 months we are not having our worship in the church, but definitely the church worship is being relayed to you through this link or YouTube or Facebook. Do you give your time? Or you take it granted, okay, here also, there also, I should listen to that worship half an hour, this worship 15 minutes, then we'll go and switch on to our church worship and be part of that for half an hour. No. Be punctual. Be punctual. Be punctual, my friend, because this is your mother. The church is your mother. And your mother, the obligation we have for our mother is much more than any other, except His kingdom. His kingdom is our first priority, then the church is second priority. Each one should participate. आप में से हर एक को इसमें भाग लेना है, इसीलिए हम इसके लिए मेहनत करते हैं. That is why we make lot of effort to bring this to you every evening, and on Sunday also and Saturday also, and then Sunday evening twice a month. It requires lot of study, lot of work. It's not being recorded just like this. No. It's being recorded with passion, with burden, and with dedication, with commitment, so that we are blessed. And therefore, we need to understand that we need to be faithful in our study the Word of God and in the worship. And then we need to be faithful in our giving. In our giving. I have announced several times, and this should not be the matter of announcement. You kindly bring your Sunday offering for last 3 months and deposit in the church. And I have been asking, whenever I go to office, I said to the accountant, how many people have given? The answer is very less people, sir. You may not give, doesn't matter, but that's God who watches you. If you have given the offering on Sunday, and if it was prayed for, it is your duty to bring that offering collectively together for 3 months, and whatever the amount is, deposited in the church. And then how many of us have made pledge every month? There are certain people, they are blessed people, but there are many people who are not giving their pledge. I cannot fool God. I cannot fool God by not giving anything. Automatically my resources will become lesser. And therefore I am to give. मुझे देने की आवश्यकता, आपको कोई बार बार नहीं बोलेगा. और जब मैं रिमाइंड करता हूँ, कोई लोग कहते साहब रिमाइंड मत करिए, लोग अपने आप देंगे, लेकिन अपने आप नहीं देते हैं. ये हमारा स्वभाव है. ये हमारा स्वभाव है. हमें अपने आप देने की आवश्यकता, हमें विश्वासी होने की आवश्यकता. I need to be faithful in giving also, and then I need to be faithful in preparing myself for His second coming. Like those 5 wise virgins, उन 5 कुमारियों के समान हमें विश्वासी होकर के प्रभु के द्वितीय आगमन की बाट जोड़ने की आवश्यकता, ताकि जब वो आए तब उसके साथ हो लें. नहीं तो फिर कोई नहीं पहचानेगा, हम बाहर ही रह जाएंगे. 3 बातों में हमें विश्वासी होने की आवश्यकता है. और above all, I need to be faithful to Him every day. My life should be faithful to God every day, because I say that I am His disciple. Disciple means the one who follows the leader, follows the Guru, follows the Lord. Am I following Him day by day? And following Him, meaning of that I am making myself holy sacrifice. My sacrifice should be holy on His altar, so that I am used by Him in a miracle way, in a wonderful way. 4 पद में लिखा है, तीसरे पद में लिखा है 4:3 में, परंतु मेरी दृष्टि में ये
बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्यों का कोई न्याय मुझे परखे, पर मैं स्वयं अपने आप को नहीं परखता, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। ही सर्च माई लाइफ, वो मेरे जीवन को परखता है कि मैं विश्वासी हूँ नहीं हूँ, हो या नहीं हूँ। आज हम यहीं रुक जाएंगे मित्रों। टुडे विल स्टॉप हियर, बट आई वांट ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रभु चाहता है कि हम उसके सच्चे भंडारी बने, क्योंकि हम अपने आप को आत्मिक कहते हैं। वी से दैट वी आर स्पिरिचुअल पीपल, therefore need to become a true custodian of his everything that is given. Because since I am a custodian, one day I have to give all the account to him, not to any church, not to any leader in this world, not anybody, but my account will be given to him. He will ask me one day in front of everybody, what you have done with the life that I gave you. उस जीवन के साथ तुमने क्या करा जो मैंने तुम्हें दिया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के पिता परमेश्वर, आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया, जिससे हमने प्रभु पढ़ा कि एक आत्मिक जीवन में एक आत्मिक व्यक्ति को क्या क्या करने की आवश्यकता। लॉर्ड, वी थैंक यू फॉर द वर्ड दैट हैज कम टू अस एंड वी हैव स्टडीड टुडे, रेड टुडे, लॉर्ड, व्हाट आर द थिंग दैट ए स्पिरिचुअल मैन हैज टू डू। ही हैज टू डू to follow Jesus Christ faithfully. उसे अपने जीवन में विश्वास योग्यता के साथ प्रभु के साथ चलने और बढ़ने की आवश्यकता। लॉर्ड, हेल्प एंड गाइड अस। ब्लेस दिस चर्च लॉर्ड ऑफ एपोस्टल मेथोडिस्ट congregation, our English congregation, our Hindi congregation and our Nepali congregation. Lord, help us. Have mercy upon us, Lord. Guide us and lead us. We thank you, Lord, for the word that has come. प्रभु धन्यवाद देते कि ये वचन जो आज हमारे हृदय के अंदर बोया गया, हम चाहते कि आपका आत्मा उसको सींचे प्रभु, ताकि उससे फल उत्पन्न हो, 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए जो परमेश्वर के दास के द्वारा हमें सुनाया गया, और परमेश्वर मोहताज से हमको आशीष दे। मोहताज से इस वचन को जो हमारे बीच में बोया गया है एक बीज के रूप में, ये हमारे जीवन में 100 गुना फल लाने वाला हो सके। अब अभी तो ये वक्त होगा कि हम अपने एक और गीत को गाएंगे जो कि पाया जाता है इंग्लिश बुक के अंदर 263 सॉन्ग नंबर नियर माई गॉड टू दी नियरर टू दी, एंड दी ऑफेटरी विल बी collected during this song, and you can collect your offering by your own self, and when the church will open you can offer your offerings to the church. आइए हम इस गीत को गाएं। Let us glorify God by singing this song. English book 263, Nearer my God to thee, nearer to thee. Let us join this song. Cross
and may God bless us all by this song. अब ये वक्त होगा कि हम अपने ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। धन्य सर्वशक्तिमान पिता, एक बार फिर धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया। एंड लॉर्ड, वी ऑफर आवर ऑफरिंग्स ऑन योर फीट लॉर्ड, एंड लॉर्ड ऑल्सो ब्लेस each and every family, and Lord, pour out your abundant blessings and open the doors of your blessings, Lord, upon them. And Lord, remove every hurdles, every obstacles from their life. And Lord, we commit their lives into your mighty hand as well. And this offering may be used, Lord, for your glory only and for the betterment of the church. Thank you, Jesus, for hearing our prayer. We ask this prayer in Jesus' most precious name. Amen. Now it's time to hear the church announcements, and may I request Reverend Dr. John R. Vishwas to introduce through these announcements, and followed by closing prayer and benediction by Reverend Dr. John R. Vishwas. ये भाई और बहनों, कुछ सूचनाएं हैं जिनको हम सुने इस प्रकार से। ये हमारी आराधना इसी प्रकार से अगले रविवार को होगी और समय है सुबह 10 बजे। समय को याद रखें मेहरबानी से। हमारी बाइबल स्टडी जो रोज़ शाम को होती रहेगी, और उसका समय है सोमवार से शनिवार तक शाम को 7:30 बजे। डियर फ्रेंड्स, द नेक्स्ट संडे वर्शिप विल बी हेल्ड एज वी आर डूइंग नाउ by Zoom and by this link, and then also we have this Bible study every evening at 7:30 by link. So please attend and be blessed. We are having our WC Sisters meeting. They have started from 20th at 4:30 evening by link. So I request all our WC Sisters to please contact Mrs. Wilson and attend this meeting. Similarly, we are having our MY meeting by Zoom, and I request the boys and girls in our MY to please contact bookers and also participate in this meeting. Similarly, we are having also a young adult fellowship meeting, and you are requested to also contact Hughes Wilson and Mr. C.B. Samuel. प्रिय मित्रों, हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते रहें। अब ये जो कोरोना वायरस की समस्या है काफ़ी व्यापक होती जा रही है और बहुत परेशानियां हैं, लोगों में कठिनाइयां हैं। तो आप सावधान रहिए, अपने आप को सावधान रखें ताकि आप सुरक्षित रहें। जब तक की ज़रूरत ना हो बाहर ना जाएं और घर में रहें। और ख़ासकर जो बुजुर्ग हमारे घरों में हैं 65 उससे ऊपर, और बच्चे जो 10 साल उससे नीचे हैं, उनको आप सावधान रखें, उनकी देखभाल करें ताकि किसी प्रकार से कोई परेशानी ना हो। हम प्रार्थना करते रहें अपने कलीसिया के अगुओं के लिए, खास करके हमारे बिशप साहब, बिशप सुब्रत सिंह मंडल, मैडम सुदूर का मंडल, हमारे हर एक DSS के लिए प्रार्थना करें, हमारे हर एक पासवानों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु की कृपा अनुग्रह दया उन पर बनी रहे। हम प्रार्थना करें हमारे कलीसिया के एक परिवार के लिए जो इंग्लिश कॉन्ग्रीगेशन में है, हिंदी में है, नेपाली में है, हर एक परिवार में प्रभु आशीष पाई जाए। जो बीमार उनके लिए हम खास प्रार्थना करें। मिस्टर जूलियस विल्सन के लिए कि प्रभु उनको चंगाई दें, और भी अगर कोई दुखी है, परेशान है, प्रार्थना करें प्रभु उनको चंगाई दें, उनकी सहायता करें। हम प्रार्थना करें हमारे देश के अगुओं के लिए, हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राज्यपालगण, हमारे मुख्यमंत्रीगण, हमारे MPs MLAs, हमारी सेना, हमारी पुलिस के लिए प्रभु उनके साथ रहे, और जो भी मेहनत वो करते हैं प्रभु उसको प्रबंधित करें देश के लिए, ताकि उनके हाथ में देश सुरक्षित रहे और तरक्की करती चली जाए। आज की आराधना के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु का, और आप सबों के लिए कि आपने भाग ली। धन्यवाद देते तमाम उन लोगों के लिए जिन्होंने पार्टिसिपेट करा प्रेज़ वर्शिप में, आराधना के अंदर और बाइबल के पढ़ने में और तमाम बातों में। मैं और पादी शरण आप सबों का हृदय से धन्यवाद करते हैं।
प्रार्थना करें, हम प्रभु के आशीष वचन को ग्रहण करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो आपने दिया प्रभु, कि आज फिर से एक बार हम आपके सामने आ सकते हैं प्रभु, आपकी महिमा कर सकते हैं। हमारी प्रार्थना कि आज की आराधना में आपने आशीष दी, धन्यवाद देते प्रभु। और जब प्रभु हम इस आराधना में आगे बढ़ते हैं जीवन के अंदर प्रभु, हर शाम के समय प्रभु बाइबल का अध्ययन करते हैं, हमारी प्रार्थना प्रभु कि आप हमसे बातचीत करें ताकि हम आपके वचन को समझें और आप में बढ़ते चले जाएं। Lord, we thank you and praise you for hearing our prayer, and thank you Lord for this worship today we had here Lord, and I pray for all the people who have participated in the worship. Let your grace and peace be upon each one of them. We thank you Lord that they heard our prayer. We submit and surrender our lives. I pray for each member, each family in our English congregation, Hindi congregation, and Nepali congregation. Let your will be done in and through our lives. Thank you Lord that they heard our prayer. In Jesus' matchless name I pray. Amen. अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस की ताकत और शराकत हमें सारे के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे। And now may the grace of our Lord Jesus Christ, love of the Father, and sweet communion of the Holy Spirit rest and abide with all of us now and forevermore. Amen.